السلام علیکم، پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں صدف یاسر۔ تو ہم بات کریں گے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو پیش کر دی گئی ہے، اور اس کا جو اجلاس ہے وہ 25 مارچ کو بلایا گیا ہے۔ حکومت اصولاً تو جس تاریخ کو بلانا چاہتا ہے اس پر نہیں بلا سکی، ڈیلے کیا گیا ہے، اور یہ جو ڈیلے ہے یہ مزید ڈیلے بھی ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے اپوزیشن کو کچھ تحفظات بھی ہیں۔ کچھ پارٹی ارکان ایسے بھی ہیں پی ٹی آئی کے جو کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر پی ٹی آئی سے ناراض ہو کر اپوزیشن کے ساتھ بھی مل چکے ہیں، چونکہ پی ٹی آئی اس طرح سے ان کو سپورٹ نہیں کر سکی۔ تو لوگ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ تحریک کامیاب ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی، انہی سے جانتے ہیں۔ تو ابھی میرے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں، یو سی چیئرمین رہ چکے ہیں عاطف کسانہ صاحب، وہ بھی موجود ہیں، ان سے بات ہوئی۔ عاطف صاحب، جس طرح سے راجہ ریاض نے اپنی پارٹی بدل رہی ہے، بڑا لان تان بھی کی جا رہی ہے، ان کے گھر کے باہر کافی احتجاج بھی ہوا ہے، اور صرف راجہ ریاض نہیں، اور بھی پارٹی کے پی ٹی آئی کے بہت سارے ممبرس ہیں جو کہ اپوزیشن کے ساتھ مل چکے ہیں۔ کیا یہ فیصلہ کرنا ٹھیک تھا؟ کیا پی ٹی آئی میں خوش نہیں تھے جس وجہ سے یہ فیصلہ کرنا پڑا، یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی میڈم، اس کا جواب تو راجہ ریاض صاحب خود ہی دے سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو فیصلہ لیا ہے کہ کون سی پارٹی میں انہوں نے رہنا ہے۔ باقی رہی بات کہ وہ خوش ہیں یا نہیں خوش، اس کا جواب بھی وہی دیں گے۔ جو آپ نے بات کی ہے کہ وہ ادھر آ گئے ہیں یا ادھر چلے گئے ہیں، جمہوریت ہے جی، ہر بندے کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی سیاست کسی بھی جماعت میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں۔ جہاں تک بات کی ہے لان تان کی، دیکھیں یہ ایک غیر جمہوری اور غیر اخلاقی حرکت جو پی ٹی آئی کے لوگ کر رہے ہیں۔ جب راجہ ریاض پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی میں گئے تھے اس وقت تو وکٹیں گر رہی تھیں، اس وقت تو یہ کہا جا رہا تھا دیکھیں جناب آج ہم نے فلاں کو بولڈ کر دیا، آج ہم نے فلاں وکٹ گرا دی ہے، اس وقت تو یہ ویلکم کر رہے تھے۔ اور ترین صاحب جو اس وقت ان سے ناراض ہیں، ان کے جہاز بار بار کے جب خان صاحب کے بنی گالہ پہنچ رہے تھے تو جشن کا سماع ہوتا تھا، اور روزانہ کی بنیاد پر وہاں پر جو بنگلے ڈالے جاتے تھے وہ آپ صاحب میڈیا نے کوریج کی ہیں۔ لہٰذا یہ ان کی ذہنی پستی اور ان کا یہ غیر اخلاقی یہ ان کی حرکت ہے، جو اس وقت یہ پاکستان کے اندر جو لوگ ان کی معاشی، سماجی اور روزانہ کی بنیاد پر پاکستان کی وہاں پر جو کہ بجلی کا بم گرایا انہوں نے، پیٹرول کا بم گرایا اور مہنگائی عروج پر تھی، اس کے خلاف جن لوگوں نے آواز اسمبلی کے اندر یا جماعت جو ان کی پی ٹی آئی ہے اس کے اندر اٹھانے کی کوشش کی ہے، تو انہوں نے اب ان کو منحرف کہہ دیا ہے اور ان کے خلاف یہ لان تان کر رہے ہیں اور ان کے خلاف یہ جلسے جلوس نکال رہے ہیں۔ ہم تو ان کی مذمت کریں گے، بینگ کہ پاکستانی ان کا حق ہے وہ جس جماعت میں رہیں۔ ابھی یہ جو عدم اعتماد پیش ہوئی ہے، ابھی اس کا ووٹنگ ڈے نہیں آیا، ابھی انہوں نے اپنا حق استعمال نہیں کیا، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں یا پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہیں یا ادھر کسی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب وہ کہیں جا کر اپنا حق استعمال کریں گے یا منحرف ہوں گے تو اس کے بعد ان کو حق حاصل ہے کہ یہ جناب اپنی بات کریں یا احتجاج ریکارڈ کرائیں۔ یہ قبل از وقت جو راگ لاپا ہے، میں تو اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ اچھا، اب جو ایک وزیر اعظم جو جلسوں میں آ کر جو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کہ جو ایم پی ایز اپوزیشن میں چلے گئے ہیں وہ آ جائیں تو اچھا ہے، یہ کہنے کے ساتھ التجا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ دھمکی بھی دیتے ہیں کہ اگر نہیں آئیں گے تو کچھ برا بھی ہو سکتا ہے۔ ہم کھلی دھمکی کہہ سکتے ہیں اس کو کہ آپ کے بچوں کا اسکول جانا مشکل ہوگا، آپ شادیوں میں نہیں جا سکتے، کسی سے مل نہیں سکتے۔ تو سمجھتے ہیں کہ ان دھمکیوں کے بعد کچھ ارکان ایسے ہو سکتے ہیں جو ڈر کے واپس چلے جائیں پی ٹی آئی میں؟ آپ نے دیکھا جی ارکان کا موقف تو سامنے کھل کے آ گیا ہے، انہوں نے اپنا اختلاف میڈیا کے سامنے بتا دیا ہے۔ جہاں تک بات رہی خان صاحب کی دھمکیوں کی، پہلے یہ کہتا تھی گھبرانا نہیں ہے، اب گھر گھر یہ گھبرا کے خود پھر رہا ہے۔ آپ دیکھیں جناب کبھی کسی محلے اور کبھی کسی شہر میں جا رہا ہے، اب یہ اس کی ذہن کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ خود کتنا گھبرا گیا ہے۔ لہٰذا اب یہ وہ کہتے ہیں جب گیو اب جی نہیں رکے گا انشاءاللہ۔ آپ نے دیکھا یہ 25 کا جو انہوں نے انلیگل اجلاس کال کی ہے اس پر بھی آرٹیکل 6 لگے گا اسپیکر پر، جو اس نے جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن جو 7 دن کے اندر اندر انہوں نے جو اجلاس اس کے بعد بلانا ہے، یہ خان صاحب اب جانے کی تیاری کریں۔ اب یہ گھبرا چکے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ جی اب پاکستان کی عوام سے ان کی جان، ہماری جان ان سے چھوٹ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ جی۔ چلیں، کچھ لوگ بھی میرے ساتھ موجود ہیں، میں ان سے بات کروں گی۔ تو آپ مجھے بتائیں سپورٹر کس کے ہیں آپ؟ نون لیگ کے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے محلے دار، ہمارے بھائی دوست جو بھی ہیں وہ نون لیگ کے ہی ہیں، یہ ہمارا علاقہ بھی نون لیگ کا ہی ہے، اچھا ہم سپورٹ بھی نون لیگ کو ہی کرتے ہیں۔ اچھا، آپ اسی حلقے میں آتے ہیں جو راجہ ریاض کا ہے؟ رہے ہم بولے چکی کے رہنے والے ہیں، یہ ہمارے حلقے میں راجہ ریاض نے جو فیصلہ کیا یہ ٹھیک ہے؟ بہت اچھا فیصلہ کیا انہوں نے، اس لیے کہ یہ مہنگائی کا دور ہے، اچھا کام نہیں کر رہے، حکومت جو کر رہی ہے وہ اچھا نہیں کر رہی۔ تو پھر حلقے کے لوگوں نے احتجاج کیوں کیا راجہ ریاض کے گھر کے باہر، اگر یہ اچھا فیصلہ تھا ان کا؟ ہمارے علاقے میں تو کوئی نہیں کیا کسی نے، ان کے گھر کے باہر؟ ان کے گھر کے باہر کا ہمیں نہیں پتا۔ تو آپ سمجھتے ہیں یہ واقعی اچھا فیصلہ ہے کہ انہوں نے اگر اپوزیشن کو جوائن کر لیا، پی ٹی آئی کو بہت اچھا فیصلہ کیا انہوں نے، یہ چوروں کی حکومت ہے، سب چور لٹیرے ڈاکو ان کے ساتھ ہیں،
कोई अच्छा आदमी तो हमें नज़र कभी नहीं आया। ठीक है, आप मुझे बताएं कि ओपोजिशन कामयाब होती नज़र आ रही है आप? इंशाल्लाह ज़रूर होगी कामयाब। क्या ऐसा है ओपोजिशन में जो हम ये कह सकते हैं कि हाँ जी ये कामयाब होगी? आपके सामने ही है वाज़ह चीज़, एक तो महंगाई अरूज पे इनकी, दूसरे नंबर पे एक तो सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है। तो ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अल्लाह के करम से अब अगर इन्होंने अदम एतमाद पेश की है तो 25 तारीख को इंशाल्लाह उम्मीद तो बड़ी है कि कामयाब ये होंगे। 25 तारीख को बुलाने का वैसे हुकूमत का ये पर्पस भी है कि ये जो इजलास है, ये जो तहरीक है, ये डिले भी हो जाए क्योंकि रमज़ान शुरू हो जाएगा, रमज़ान में फिर मज़ीद डिले भी आएगा। तो लगता है कि हुकूमत अब इतनी बौखला गई कि टैक्टिक्स खेल रही है कि किस तरह से इस चीज़ को आगे लेके जाए। देखिए जी, उनकी तो पूरी कोशिश है कि इसको डिले किया जाए, क्योंकि सूरत हाल तो वाज़ह वज़ीर-ए-आज़म के सामने है, बाकी उनको सबको पता है कि मैं अब जाने वाला हूँ। लेकिन ये अगर अपोजिशन ने इसके ऊपर एक वाज़ह तौर पे गठजोड़ किया तो इसको कामयाब ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, कह सकते हैं कि और भी कई अरकान हैं जो आप पीटीआई को छोड़ सकते हैं? उम्मीद तो बड़ी है, आपको वक्त बता देगा। मतलब आपको लगता है कि ये सही फैसला होगा उन अरकान का? हाँ जी, बहुत बेहतर फैसला होगा ये। अच्छा, तो आपको लगता है कि अगर ओपोजिशन ये तहरीक जो है इसमें कामयाब हो भी जाती है तो ओपोजिशन से कोई भी जमात अगर हुकूमत में आ जाती है, आवाम की आवाज़ सुनेंगे? ज़रूर सुनेगी, पहले भी सुनते आए हैं नून लीग वाले। देखें लेकिन वो अगर अभी देखा जाए जिस तरह से ये मुल्क कर्ज़ों में डूब चुका है, हम लोग IMF से बड़े कर्ज़े भी ले चुके हैं, इसको निकालना थोड़ा मुश्किल नहीं लगता किसी भी जमात के लिए? ता तो मुश्किल है। देखें ना, पीटीआई पहले इलेक्शन में यही कहती थी कि जी हम IMF के पास नहीं जाएंगे, हम आपको 100 दिन का प्लान देंगे, घर देंगे, 50 लाख घर बनेंगे, 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। वो सारे अपना एक ड्रामा हमें दिखाते थे, एक वो लॉलीपॉप देते थे, वो ख़त्म हो जाता था। तो अब देख लें, अगर वो भी तो पहली गवर्नमेंट अपनी करके देख के गए हैं। इस मुल्क में 18 घंटे लोड शेडिंग हमने देखी है, वो भी तो उन्होंने किया ना। उन्होंने अपने बिजली के मंसूबे लगाए हैं, गैस के प्लांट्स लगाए हैं, आपके सामने हैं, तरक्याती काम हुए हैं। अब तकरीबन 4-5 साल पीछे चले जाएं और अब इनकी गवर्नमेंट को 3.5 साल हो गए हैं, ना कोई रोड बन रहा है, टैक्सीज़ पे टैक्सीज़ लगे जा रहे हैं। वो यही बस एक बात वो हर जलसे में कहते हैं जी, जो भी वो कौम के साथ खिताब करते हैं, एक तो घबराना नहीं है, घबरा तो सारी आवाम गई है अब। जो यूथ थी, मोस्टली जो यूथ थी वो इमरान खान के साथ थी, पीटीआई की जमात के साथ थी। आप भी यूथ में ही कंसीडर होते हैं। क्या आपको कभी इमरान खान की स्पीच ने जो वो करते थे आकर कभी कायल नहीं किया कि आप भी पीटीआई के साथ हो जाएं? कायल तो बहुत किया था, लेकिन साथ साथ जैसे वक्त गुजरता रहा, जैसे उनकी तकरीरें और लहजा उनका और घबराने का अंदाज़ उनका बढ़ता रहा, तो फिर खासतौर पर जब पेट्रोल का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है तब हम लोग घबरा जाते हैं काफ़ी। पेट्रोल तो शौकत तरीन साहब ने जी 250 रुपये पर लीटर की पेशगोई की हुई है जी, कि IMF के दबाव में हमने 250 रुपये करना है। तो लेकिन अभी उसको स्टेबल भी तो किया हुआ है, वज़ीर-ए-आज़म ने ये भी कहा है कि अभी जो है हम ये रेट नहीं बढ़ाएंगे। स्टेबल इस वजह से किया है कि अदम एतमाद की वजह से। वो कौन सा ये आपकी और 22 करोड़ अवाम के खुशी के लिए किया हुआ, उन्होंने तो बस अपनी सीट बचाना चाह रहे हैं। आप यंग जनरेशन में आते हैं, यंग जनरेशन के साथ आपका उठना बैठना है, जिस तरह से पहले सपोर्ट करते थे लोग यंग जनरेशन पीटीआई को, नज़र आते हैं उस तरह से अब जनरेशन जो है यंग जनरेशन वो पीटीआई के साथ है या नहीं? नहीं, बहुत फ़र्क है अब तो। जो समझ बूझ रख रहा है ना, मुल्क के बारे में कुछ सोच रहा है कि जी ये इस टाइम इसको चले जाना चाहिए, वो अब माइंड सेटअप अपना कर चुके हैं। अब ये फैसला कर चुके हैं नौजवान भी कि अब जिन बातों पे हमने यकीन किया था वो बातें सिर्फ धोखा थी। सिर्फ धोखा था। ठीक है, गुलाम भी कवान साहब भी मौजूद हैं, यूसी चेयरमैन रह चुके हैं। तो डेफिनेटली बुज़ुर्गों के साथ साथ बच्चे नौजवान भी अब हमें वो कहते हैं ना घबराना नहीं, लेकिन घबराए हुए नज़र इसलिए आते हैं क्योंकि ये जो बातें करते रहते घबराना नहीं, अब खुद काफ़ी घबराहट का शिकार हो चुके हैं। तो क्या वजह है कि अब लोग इस तरह से पीटीआई से पीछे हटते जा रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने अभी ये तासुरात सुने हैं नौजवानों के, पूरी कौम में समझता हूँ सरापा एहतजाज है, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि आम आदमी को, किसी गरीब आदमी को सबसे पहले उसकी ज़रूरत जो है वो उसकी ज़ाती ज़रूरतें हैं। और अब जो महंगाई ने लोगों का बुरा हाल किया है वो सारी कौम के सामने है, और इस नालायक सेलेक्टेड नाअहल हुकूमत ने लोगों को, मैं समझता हूँ, बुनियादी ज़रूरतों से महरूम कर दिया है। और अब यकीनन लोगों का एक गवर्नमेंट के बारे में जो तासुर बनता है वो उसकी कारकर्दगी के साथ मशरूत होता है। अगर अच्छी कारकर्दगी होती है तो यकीनन लोग इतने बखील नहीं हैं, ये कौम बड़ी समझदार है, लोग बड़े बाशऊर हैं, तो उसकी शाबाश भी देते हैं। लेकिन जब उम्मीदें दम तोड़ती हैं और उनकी तवक्कुआत के बरक्स काम होते हैं तो फिर एहतजाज होता है। और आज
अपोजिशन की जो तहरीक अदम एतमाद है, ज़ाती तौर पर मेरी राय में पूरी कौम इसके साथ पीछे खड़ी है और अन करीब इंशाअल्लाह इसका नतीजा सारी कौम के सामने होगा और इस नाअहल, नालायक और सिलेक्टेड हुक्मरान से इस कौम को निजात मिलेगी। और इस उम्मीद के साथ कि जो भी लोग नए आएंगे वो इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए बेहतर सोचेंगे, ऐसी वो इस कौम के लिए हिकमत अमली बना के ऐसी स्कीमें देंगे, इसको जहाँ से वो तरक्की का सफ़र तातुल का शिकार हुआ था, नए जज्बे से, नए अज़्म से शुरू करेंगे। लोग कहीं ना कहीं थोड़े से डर तो नहीं गए कि जिस तरह से पीटीआई की हुकूमत भी आ रही थी तो लोग बड़े पुरुम्मीद थे कि हालात ठीक होंगे, अब दोबारा से किसी और जमात पर यकीन करना मुश्किल नहीं होता जा रहा? देखें, ये हर बंदे की अपनी राय है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगा कि ये तो ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने अपनी ज़ुबान से तस्लीम किया है कि मेरे पास टीम नहीं थी, मैं ना तजुर्बाकार था। मैं समझता हूँ कि कोई भी होशमंद बंदा ना ऐसी बात नहीं कहता। अगर तेरे पास टीम नहीं थी तो पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाने की फिर क्या ज़रूरत थी? तो ये मामला थे ऐसे कि ऐसा करते कि सारी कौम को आपने दायां दिखा के बायां थप्पड़ उनके मुंह पे रसीद कर दिया और सारी की सारी वो सूरत हाल जो ऐसी उम्मीद बंधाई कि आपके पास तजुर्बा नहीं है, अहल टीम नहीं है, तो फिर आपने अपनी काबीना में वो सारे वज़रा ले लिए जिनके बारे में आपने अपनी ज़ुबान से ऐसे कलिमात कहे थे कि अब तो हम तो दोहराते हुए भी शर्माते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कि कुछ ना कहीं मसला टीम का भी रहा कि पॉलिसीज़ बेहतर नहीं बन सकी, टीम बेहतर काम नहीं कर सके। अभी वक्त ब्रेक का साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगी, उनसे जानूंगी कि आखिर वो हैं किसके साथ, पीटीआई के साथ हैं या जो अपोजिशन की जमातें इकट्ठी हुई तो उनके साथ हैं। तो आप मुझे बताएं, जिस तरह से अपोजिशन और हुकूमत की जंग हम कह सकते हैं, क्या लगता है सही कौन है और गलत कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि जो पीडीएम का सारा शोर शराबा है, ये अब आवाम बड़ी समझदार हो गई है। किसी को भी इस चीज़ का अंदाज़ा पहले नहीं था कि ये मुल्क के साथ क्या करना चाह रहे हैं। माशाल्लाह अब आवाम बड़ी समझदार हो गई है। यंग जनरेशन जो टोटली है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। तो मैं एज एक तहरीक इंसाफ का वर्कर हो के नहीं मैं बात कर रहा, मैं एक आम शहरी हो के बात कर रहा हूँ कि ये जो इमरान ख़ान की ये जो सारी जदोजहद है, इतनी जदोजहद है, आज देख लें आज 23 मार्च है, तो इस लिहाज से तो माशाल्लाह इस्लामी कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो ये जो सारी बातें हैं ये हम सबको पता है। तो मैं बीच बात कर लेते हैं राजा साहब की। राजा साहब को तो हम वेलकम करते हैं वापस, अगर वो वापस आ जाते हैं तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ अगर आप हल्के में उनकी कारकर्दगी देख लें तो वो आपको, ये मेरे जितने भाई हैं ये आपको सारे बता सकते हैं कि उनकी कारकर्दगी क्या है। बस, थैंक यू। अच्छा, लेकिन जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं कि लोग जो हैं वो जाग गए हैं, उन्हें पता चल गया है, अब वो बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, लेकिन यही बातें जब पीटीआई बहुत ज़्यादा दावे कर रही थी कि हम जो है मुल्क के हालात बेहतर कर देंगे, तब्दीली लेकर आएंगे, लेकिन लोग तो अब हमें ये कहते नज़र आते हैं कि वो जो धोखा जो पीटीआई ने हमें दिया था वो हमारे सामने खुलकर आ गया है कि पीटीआई इस मुल्क को चला ही नहीं सकती। नहीं जी, पीटीआई मुल्क को चला क्यों नहीं सकती, ये तो हर बंदे को पता चल रहा है कि मुल्क को चला कौन रहा है। आम बंदा है, आम बंदा एनालिसिस कर ले कि ये जो जितनी भी जमातें हैं, टोटल जमातें हैं, ये इकट्ठी हुई हैं, ये इकट्ठी होने का इनका मकसद क्या है, ये तो हर बंदे को पता चल रहा है कि इनका मकसद क्या है। एक साइड पे एक बंदा है, बाकी सारी जमातें इकट्ठी हो गई हैं, उनको इसी बात की तो टेंशन है कि हमारा पैसा, हमारी जायदादें, हमें जेलें होनी हैं। ये सारी बातें अब आवाम बड़ी समझदार है जी। हो सकता है कि जो पीटीआई नहीं करके दिखा सकी, इस मुल्क को बेहतर नहीं चला सकी, अपोजिशन की जमातें इकट्ठी होकर शायद चला लें इस मुल्क को। नहीं जी, ये तो अपोजिशन की जितनी भी जमातें हैं, जिसमें पीपल पार्टी आती है, नून लीग आती है, इसके अलावा भी जितनी जमातें हैं, सब ने मुल्क इन्होंने पहले चलाया। पीटीआई को तो ये अभी 3-3.5 साल हुए हैं, सही है। हम अगर मैं बात करूं, सियासत की मैं बात कर लूं, तो आप अगर मेरे गांव का विज़िट कर लें, उसमें मैं यकीन करें कि मैं पैदल मस्जिद में नहीं जा सकता। हमारे जो जनाज़गाह हैं, जनाज़गाह में जनाजा जो है वो डालों पे, गाड़ियों पे लेके जाना पड़ता है, मतलब ये कंडीशन है,
सही है। तो हम अच्छा, बिल्कुल ये जो कंडीशन जिसकी आप बात कर रहे हैं इसी पर बात करूँगी, ये कंडीशन जो मुल्क के इस वक्त हालात हैं, अगर हम देखें गंदगी नज़र आती है हमें, सीवरेज का निज़ाम हमें ठीक नज़र नहीं आता, बिजली का मसला नज़र आता है, तो क्या पीटीआई को ये सब चीज़ें ठीक नहीं करनी चाहिए थी? पीटीआई तो जितने तक वो कर रही हैं, तो बाकी सारी हुकूमतें हो चुकी हैं। पीपल पार्टी ने हुकूमत कर ली है, नून लीग ने भी कर ली है, सबको आजमा लिया है हमने, और पीटीआई चल रही है, अच्छी चल रही है हुकूमत इस वक्त। इंशाल्लाह करेगी कंट्रोल सब चीज़ पे। अच्छा, आप ये मानते हैं कि पीटीआई अच्छा करेगी? हाँ जी, इंशाल्लाह करेगी कंट्रोल। ठीक है। अच्छा, पीटीआई को ही सपोर्ट किया था आपने? हाँ जी, पीटीआई को सपोर्ट किया था। अब लगता है कि जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं वो काफ़ी हद तक पीछे भी जा चुके हैं? नहीं, पीछे नहीं जा चुके, वो ज़्यादा हो चुके हैं अभी। जब जिन लोगों में मैं जाती हूँ वो तो मुझे पीछे नज़र आते हैं, वो इसलिए क्योंकि इस टाइम में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। अगर हम तरक्याती कामों की बात करें तो इस टाइम में हमें कोई तरक्याती काम भी नज़र नहीं आया। नहीं, तरक्याती काम बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं इमरान खान साहब, तो बाकी जो है ना अवाम पीछे नहीं हटी उनसे। ठीक है, चलें, आप भी अभी यही उम्मीद रखते हैं कि जो हुकूमत है वो बेहतरी लेकर आएगी? जी इंशाल्लाह आएगी। अभी 3 साल हुए थे और ये पीडीएम का गंद आ गया दरमियान में अमेरिका आ गया, दरमियान में अक़वाम मुत्तहिदा आ गया, यूरोपीय यूनियन आ गया, और इमरान खान को इन 3 सालों में कोरोना आ गया। चैलेंज का बहुत सामना रहा है, जिसकी वजह से अभी फंड जारी हुए थे, अभी काम हो रहा था, और ये पीडीएम वालों को खतरा पड़ गया कि अगर ये 1 साल या 6 माह और रह गया तो हमारी तो हुकूमत आएगी नहीं, हम तो बिल्कुल घरों में बैठ जाएंगे। इसलिए इन्होंने ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अवाम की शायद परेशानी को ख्याल आ गया अपोजिशन को कि पीटीआई तो संभाल नहीं पा रही तो हम आकर संभाल लेते हैं? नहीं, ये बात नहीं है। ये पीडीएम वाले तो इसलिए आए हैं कि अगर ये इमरान खान 6 माह या 1 साल और रह गया तो हमारी हुकूमत आएगी नहीं। अगले 5 साल भी इमरान खान के हो गए। अभी काम हो रहे थे, हमारे हलके में भी हो रहे थे, हम राजा साहब के हलके से हैं, हमारे हलके में काम हो रहे, सड़कें बन रही थी, सीवरेज की पाइपलाइनें बिछ रही थी, मगर ये दरमियान में आ गया। और राजा साहब से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं आपके ज़रिए कि प्लीज़ वापस आएँ। हार जीत में अल्लाह के पास है, अगर अल्लाह ने आपको जीत देनी है तो जीत देगा, हार देनी है तो हार देगा, पर आपको चाहिए कि आप वापस आएँ, जिस पार्टी के साथ आप हैं उसी के साथ रहें। इमरान खान जैसा लीडर आपको नहीं मिलेगा। और राजा साहब, अगर आप नून लीग का टिकट लेके आ भी जाते हैं तो अगर आप हार गए पीटीआई से फिर क्या होगा? ये जो रिक्वेस्ट आपने भी कर दी है, वज़ीर आज़म भी कर चुके हैं, तो ये रिक्वेस्ट मानी जाती है नहीं मानी? अगर देखा जाए नंबर गेम की हम बात करें तो जो अपोजिशन है उसके पास नंबर गेम से भी शायद ज़्यादा होते जा रहे हैं कि जिस तरह से लोग पीटीआई को छोड़कर अपोजिशन के साथ जा रहे हैं, तो यही कहीं नज़र आ रहा है कि तहरीक-ए-दम एतमाद कामयाब होने वाली है? अभी जो चीज़ें आप देख रही हैं ना, ज़ाहिरन कुछ नहीं है, ये लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं, और अगर कोई बंदा जाता है ना तो वो मतलब के बगैर नहीं जाता। देखिए, हम लोग ना एक काम ख़राब करते हैं 18 सालों में, और उसको कह देते हैं कि 3 सालों में हम इस काम को मुकम्मल कर लें या इस काम को ऊपर ले जाए। कैसे जा सकता है? हम लोग टैक्स तो देते नहीं है, और बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। 18 सालों में जब इन्होंने कुछ नहीं किया, तो अगर इमरान खान को आपने टाइम दिया, एक घर सीधा करने के लिए बड़े टाइम की ज़रूरत होती है, और अभी तो इमरान ने देखे 3 साल में उन्होंने एक काम सीधा किया है, और उन्होंने कोशिश करनी, ज़ाहिर आगे भी उन्होंने वोट लेने, उनका काम है कि आगे 1.5 साल या 2 साल काम करवाएं। अभी उन्होंने रुकावट बननी है काम के अंदर कि ये अपनी असल जो चीज़ है ना बाहर ना लेके आएँ, काम ना करें। अगर काम करेंगे तो अगली दफ़ा फिर आ जाएंगे। मैंने खुद देखा है, थाने कचहरी हर चीज़ बहुत बेहतर हुए हैं पहले से, और मैं बाहर रहा हूँ, सऊदी अरब में रह के आया हूँ, मैंने इधर आके बिज़नेस किया है। 18 साल पहले से अब बहुत बेहतर चीज़ें हैं। अच्छा, इस बात से मैं डिसएग्री करूंगी और वो सवाल मैं आगे थ्रू करूंगी कि जिस तरह से कहा कि इदारे बेहतर हुए हैं, इदारे बेहतर नज़र नहीं आते, बल्कि हम करप्शन की अगर बात करें तो करप्शन हमें बढ़ती हुई नज़र आई है पीटीआई के टाइम में। इसमें जो करप्शन एक छोटे लेवल पे जो है ना, अब उसमें इशू ये है कि ब्यूरोक्रेसी जिसकी मैं सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता, जिनके खाने पीने बंद हुए थे, अब वो जो बड़े लेवल पे खाने पीने बंद हुए थे उन्होंने फिर छोटे लेवल पे खाने पीने शुरू किए। तो इंशाल्लाह ताला ज़ाहिर है, आपको पता है, अब आपने रात को पत्तों की वाला सानिया आपको देखा होगा कि वो लाश पड़ी हुई और लोग खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। हम लोग इतने बेहिस हो चुके हैं, तो हम पाकिस्तानी बेहिसी हुकूमत में तो नहीं कहीं नज़र आ रही? नहीं, बेहिसी हुकूमत में अब आप देखिए, सिर्फ नोटिस ले लेना मसले का हल होता है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इस वाक़े का नोटिस तो ले लिया है, लेकिन जब बेरहमी से उस शख्स को मारा जा रहा था सिर्फ एक चोरी की बिना पर, तो क्या ये हम जो लोग हैं वो इस टाइम में इतने ख़राब हो चुके हैं, अब हमें भी ये चीज़ नज़र आने लग गई है कि लाकानूनियत बढ़ती जा रही है, हम किसी बंदे को मार भी देंगे ना, हमारे साथ कुछ नहीं होने वाला? नहीं, आप देखें पिछले जो स्कैंडल्स हुए हैं
पिछले, उनमें अब आपको मैं सबसे बड़ा वो जो इस्लामाबाद में वाक़या हुआ था ज़ाहिर शाह वाला, उसमें आप देखें कि उसमें सज़ाए मौत हुई उसको, तो हालांकि वो बड़ा हाई प्रोफाइल केस था, उसमें ऐसी सज़ा हो जाना, फिर उसके अब मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ कि आपको वो उस्मान वाला केस याद होगा इस्लामाबाद में। अब उसमें मुद्दई लड़की लड़का, गवर्नमेंट क्या कर सकती है जब मुद्दई पीछे हट जाए? उस लड़की लड़के ने कहा जी हम ही नहीं है वीडियो में। अब मुझे बताएं यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करे? अब हालांकि गवर्नमेंट ने फिर भी स्टैंड लिया, उन्होंने कहा जी इसका मुद्दई गवर्नमेंट बनेगी। अब जब जिनके साथ वाक़या हुआ है वही पीछे हट जाएं, पैसे पे लोग बिक जाते हैं। अब मैं नहीं कहता कि सब कोई ज़मीर फरोश होते हैं, लेकिन जो लोग इस तरह के वाक़यात में पैसे लेके केस से साइड पर हो जाते हैं, अब उनका मुझे बताएं, ज़ाहिर है कानून है तो फिर इस पर फैसला। बिल्कुल ऐसे मतलब मैं बिल्कुल इस बात से भी एग्री करूँगी कि कहीं ना कहीं जो कानून है किसी हद तक ठीक है, लेकिन काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो ख़राब भी हैं, और इसमें सिर्फ हुकूमत को नहीं, जिस तरह से आवाम खुद ख़राब होती जा रही है, हमें ख़ुद को भी ठीक करना चाहिए। अभी आपको आगे लिए चलते हैं। तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी काशिफ नवाज़ रंधावा साहब हैं, फैसलाबाद के नामवर सियासी रहनुमा इनको कह सकते हैं, उनसे बात करूँगी। तो काशिफ साहब, जिस तरह से आजकल तहरीक अदम एतमाद को लेकर बड़ी बातें चल रही हैं, अपोजिशन जो है वो डेफिनेटली चाहती है कि ये जो तहरीक है कामयाब हो जाए, और काफ़ी हद तक लग भी यही रहा है कि शायद अपोजिशन कामयाब हो जाएगी, और हुकूमत जो है वो भी ये दावे करती है कि ठीक है आप ये तहरीक ले आएँ, हम भी देख लेंगे, इसका सामना करके देखेंगे। तो लगता क्या है कि आखिर होने क्या वाला है? अपोजिशन किस हद तक आपको पुरुमीद नज़र आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि हम सब को अल्लाह की आखिरी कलाम कुरान हकीम से रहनुमाई लेनी चाहिए। अल्लाह ने कुरान हकीम में एक वाज़ेह असूल बयान फरमाया है कि लिमा तक़ूलू मा ला तफ़अलून, कि वो बात ना कहो जो पूरी नहीं कर सकते। इस वक्त जो मुल्क के आपके और मेरे सामने मौजूदा हालात हैं, ये सारे के सारे मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के कौल और फ़ेल के तज़ाद का नतीजा है कि उन्होंने जब से सियासत शुरू की, जो बात दावे में पेश की उसका अमल उसके उलट किया। उन्होंने कहा मैं यूथ को लेकर मुल्क को संवारूंगा, बाद में उन्होंने हर पार्टी से लोगों को छीना और ये दावा किया कि आज फ़लाँ इतनी विकेट गिर गई, आज 100वीं विकेट गिर गई। अब जब वो विकटें गिराते रहे, उनको इक़्तिदार मिल गया या दे दिया गया जैसे भी हुआ, और उन्होंने एक दावा पेश किया कि ये रियासत मदीना है। अफसोस से कहना पड़ता है कि इतने बड़े दावे के साथ वो कम अज़ कम रियासत मदीना के इमाम के अखलाक को ही नहीं अपना सके, और उन्होंने इस तरह का इस मुल्क को खिलौना बनाया कि चाहे अपोजिशन हो, चाहे उनका कोई भी मुखालिफ हो, उन्होंने उसको ऐसे हरफ तनकीद बनाया कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। हालांकि एक फ़र्द वाहिद 22 करोड़ लोगों की किस्मत का फ़ैसला नहीं कर सकता। इस मुल्क में एक सिस्टम है, इसकी अदलिया है, इसकी फ़ौज है, इसकी जमहूरी क़ुव्वतें हैं, इसके इदारे हैं। तो लिहाजा उसने जिस तरह इस मुल्क को दौस दांदली के साथ चलाया, उसका नतीजा, उसका रिएक्शन जो था, मैं समझता हूँ चूँकि अपोजिशन के इजलासों में मुझे बैठने का मौका पीडीएम में मिलता है कि अपोजिशन की नीयत इंतहाई नेक नीयत है। वो चाहती है कि मुल्क में जमहूरी सेटअप चले, लेकिन वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो आना बला गैरी कि मेरे सिवा इस मुल्क में कोई दयानतदार नहीं। स्टार्ट में कुछ ऐसा भी था कि जो अपोजिशन है उनमें ही कुछ थोड़ा बहुत इख्तलाफ चल रहा था, ये तहरीक लाने में थोड़ा टाइम भी लगा ताकि वो इख्तलाफात दूर हो सके। तो क्या तमाम जमातें अब इसके हक़ में हो गई थी कि ये तहरीक आ जानी चाहिए, यहाँ समझते हैं कि कोई अगेंस्ट है अभी? जी, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ मेरी बहन, अपोजिशन का जो इख्तलाफ था ना, आपकी बात सही मान लेता हूँ, उसको इत्तेफाक में जो मैं पहले बात बयान कर रहा था, वज़ीर आज़म के सलूक ने इत्तेफाक में मुंतकिल किया है। वज़ीर आज़म साहब का जो सलूक था, जो रवैया था, जो तर्ज़ हुक्मरानी थी, ना तो आवाम को रिलीफ मिल रहा था, गरीब पिस रहे हैं। दूसरा, अपोजिशन को लताड़ते रहना कि छोड़ूंगा नहीं, इससे मुझे आपको रोटी तो नहीं मिल जाएगी। तो लिहाजा उनके इस बच्चगाना रवैये की वजह से अपोजिशन में अगर थोड़ा बहुत इख्तलाफ था तो सब ने इस बात पे इत्तफाक कर लिया कि सबसे एक जमहूरी और एक आइनी हक़ है कि हम अदम एतमाद पेश करके तो मुल्क की इस मुसीबत से जान छुड़ाएँ और नया सेटअप बनाएँ। तो मैं समझता हूँ मेरे लिए जो आप अगर मुझसे सवाल करें शायद कि इस वक्त मुल्क की अगर खैर खाई चाहता है वज़ीर आज़म, तो वज़ीर आज़म को कम से कम ये सोच लेना चाहिए कि मैंने दावा किया था जब ऊपर वाला ठीक होता है तो नीचे के लोग सब ठीक होते हैं।
इस वक्त वज़ीर आज़म को उतारने में अपोजिशन का कोई किरदार नहीं, फ़ौज का कोई किरदार नहीं, वज़ीर आज़म के अपने उसने सलूक और उसकी पार्टी के अंदर के लोगों का किरदार है। वज़ीर आज़म ये भी कह देते हैं कि अपोजिशन के ऐसे माफियाज बैठे हुए हैं जो मेरी हुकूमत को चलने नहीं देते, क्या इसमें भी कोई हकीकत है? मैं समझता हूँ कि ये भी उनके दावे की नफ़ी है। वो कहते थे जब मैं आऊँगा तो मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। जब पाकिस्तान का चीफ़ एग्जेक्टिव का ओहदा एक बंदा हासिल कर लेता है, अदलिया उसके साथ है, फ़ौज उसके साथ है बकौल उसके, तो फिर भी वो कह रहा है कि मुझे चलने नहीं देते, तो मैं समझता हूँ ये कहने की बजाय उसे रिज़ाइन करके घर चले जाना चाहिए, किसी और को मौका देना चाहिए। ठीक है, अच्छा, किसी और को मौका देने की हम लोग बातें तो बड़ी करें, अपोजिशन भी इसी कोशिश में है, लेकिन क्या कहीं ना कहीं आवाम का ख्याल भी किसी को है? क्योंकि आवाम को पहले रिलीफ नहीं मिला, इस वक्त जो मुल्क के हालात हो चुके हैं, जितना हम कर्ज़ों में डूब चुके हैं, बहुत मुश्किल है किसी और जमात के इस हुकूमत में आकर आवाम को इस सारी मुश्किलात से निकाल। बिल्कुल बजा फरमा रही हैं आप बात, लेकिन जिस तरह का भी लूला लंगड़ा निज़ाम चल रहा था उसके अंदर तो इस्लाह की और बेहतरी की तो उम्मीद है। कम अज़ कम एक दूसरे को मिल बैठ के मशावरत करना, हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही और आवाम के लिए एक नेमत होती हैं जब तक वो मिल बैठ कर एक दूसरे को समझा नहीं लेती। मैं ये समझता हूँ कि मुल्क 74 साल में आए रोज़ दलदल में फंसता जा रहा है, तो अगर इमरान खान साहब ने उसका हल निकालना था तो वो इन तमाम लोगों को जिनके बारे वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो चोर है, वो चोर, इनको इदारों के हवाले करते, अदलिया जानती, ये जानते और एहतसाब के शोबे जानते, ये कौम को रिलीफ देते, ये अवाम का भला सोचते, अवाम की तरफ आते, उनको कोई ना कोई बेहतरी की तरफ उम्मीद लगाते। तो मैं नहीं समझता कि अवाम और इनकी पार्टी के लोग, मुंतखब लोग, कोई भी ऐसा बेवकूफ़ नहीं होता कि जो अपना हल्का छोड़े और अपनी पार्टी छोड़कर इतना बड़ा रिस्क ले। ये उस वक्त होता है जब लोग मायूस हो जाते हैं, चाहे वो अंदर के MNAs हों, चाहे आम फ्रूट फरोश हो, रेडी वाला हो, जब वो मायूस हो जाता है फिर वो ना पार्टी की परवाह करता है ना वज़ीर आज़म की परवाह करता है। बहुत शुक्रिया काशिफ। डेफिनेटली ऐसे है कि आवाम को रिलीफ नहीं मिला, अब आवाम जो है वह हुकूमत के ख़िलाफ़ भी इसलिए है कि हुकूमत जो है उन्हें रिलीफ नहीं दे सकी। अभी वक्त में ब्रेक का साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी मेरे साथ ब्यूरो चीफ सिटी 41 मौजूद है, ज़फ़र डोगर साहब। मैं उनसे बात करूंगी। ज़फ़र साहब, आजकल बड़ी एक जंग सी चल रही है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। हुकूमत चाहती है वो जीत जाए, अपोजिशन चाहती है वो जीत जाए, तो क्या लगता है कि आखिर ये तहरीक अदम एतमाद है किसका साथ देने वाली है? थैंक यू। बहुत अहम मौजू पे आपने प्रोग्राम किया है और बहुत ही इस वक्त हॉट टॉपिक है। और मैं समझता हूँ कि जमहूरियत की अगर हम बात करते हैं, जिस सिस्टम में ये दोनों पार्टियाँ या सब पार्टियाँ इस वक्त पॉलिटिक्स कर रही हैं, वो डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी में ये चलता है कि जो आईन पाकिस्तान है, आप उसको फॉलो करते हुए आप, इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि अवाम की जो राय है उसकी अहमियत होती है, पार्लियामेंटेरियंस की अहमियत, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की अहमियत है। अपोजिशन ने एक खालिस्तान जमहूरी अंदाज में प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ एक नो ट्रस्ट मोशन मूव की है, तो उसका जवाब खालिस्तान जमहूरी अंदाज में प्राइम मिनिस्टर को देना चाहिए कि वो पार्लियामेंट के अंदर मुकाबला करें, उस तहरीक को नाकाम बनाएं और अपने बंदे उधर लेके जाएं, अपने अरकान असम्बली, और अक्सरियत अगर उनका साथ देगी और अपोजिशन की तहरीक अगर वो 172 यानी सिंपल मेजॉरिटी अगर वो अपोजिशन नहीं ले सकेगी, तो नो ट्रस्ट मोशन जो है फेल हो जाएगी, तो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। तो ये क्या बात हुई कि आप अब गैर जमहूरी अंदाज़ इख्तियार कर रहे हैं, गैर आइनी हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि इजलास बहाने से लेट कर दो, इजलास के दिन जी वो इस तरीके से उसको करेंगे। अब जो मुद्दत थी वो भी गुजर गई, उस दौरान भी उन्होंने इजलास नहीं बुलाया कौमी असम्बली का, अब उसके बाद बुलाएंगे। तो पहले तो बहुत ये टैक्टफुली, और मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक अपोजिशन का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि गैर आइनी हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, गैर जमहूरी हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए। आइनी तरीके से चलें और अपनी नंबर गेम पूरी करें तो किसी को कोई एतराज़ नहीं। अब ये फोर्सेस बन रही हैं, डंडा बरदार फोर्सेस लेके जा रही है PTI ने। फैसलाबाद से कोई 1000 डंडा बरदार फोर्स, डंडे भी तैयार कर लिए, उन पर PTI के वो झंडे का रंग किया गया है।
اگر باقی شہروں سے بھی اسی طرح ڈنڈا بردار فورسز لے کے جائیں گے اور ارکان کو زبردستی روکنے کی کوشش کریں گے ووٹ ڈالنے سے، یا وہاں طاقت کا مظاہرہ ڈنڈوں کے ذریعے کرنا ہے انہوں نے، تو پھر یہ جمہوریت تو نہ ہوئی۔ پی ٹی آئی کے ارکان کا اس طرح سے دوسری پارٹی میں موو کرنا، اس کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں یہ بہت بالکل جمہوری ہے۔ ایک شخص اپنی سیٹ کی قربانی دینے کے لیے تیار اگر ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے اگر پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیا تو میں اپنی سیٹ سے محروم ہو جاؤں گا۔ آپ کو پتہ ہے ایک ایم این اے جو ہے اس کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ کسی بھی شخص کے لیے، اگر میں یہاں ہوں تو میرے لیے میری جاب بہت اہم ہے، آپ کے لیے اپنی یہ آپ اینکر ہیں، آپ کے لیے اپنی عہدہ اپنی سیٹ اہم ہے۔ اگر ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ 3.5 سال میں پرائم منسٹر نے ان کی بات ہی نہیں سنی، ان کے حلقے کے لوگوں کی آواز ہی نہیں سنی، ان کے مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور پرائم منسٹر انہیں حل کرنے کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہے، اور وہ پارٹی پالیسی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اس کے خلاف ووٹ دینے کو تیار ہو گئے ہیں اپنے ضمیر کی آواز پہ، تو اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ ایک آئین یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد پھر وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا، ڈی سیٹ ہو جائے گا۔ تو اتنی بڑی قربانی اگر ایک بندہ دے دیتا ہے کہ مجھے اپنی سیٹ کی بھی پرواہ نہیں، لیکن میں ان چیزوں کا ساتھ نہیں دے سکتا، میں حلقے کے عوام کو جواب دہ ہوں، اگر میرے عوام کی نہیں سنی جانی تو میں پھر پارٹی بدل رہا ہوں، خواہ مجھے اپنی سیٹ کی قربانی دینا پڑے۔ یہ کوئی چھوٹی قربانی نہیں، میں انہیں لوٹا بھی نہیں کہوں گا، میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، میں سمجھتا ہوں یہ آئین نے ان کو حق دیا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے آئین کے تحت وہ ڈی سیٹ ہو رہے ہیں تو وہ اس کی بھی اگر ان کو پرواہ نہیں ہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ ایسے شخص کے بارے میں کوئی نیگیٹو کمنٹ کریں۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں شاید ایسے لوگ تھے ہی نہیں کہ جو صحیح سے کام کر سکتے یا اس کو لے کر چل سکتے۔ دیکھیں یہ ایک ڈیبیٹ ہے، ڈیبیٹ اس طرح کہ وہ سمجھتے کہ ہم یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کہ ہم کر نہیں سکتے، کہتے جی ہم میں بڑے بڑے اہل لوگ ہیں، بڑے بڑے تجربہ کار لوگ ہیں، یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے کہ ہم کر نہیں سکتے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ہوا کچھ نہیں۔ میں اپنے شہر کی بات کروں گا کہ فیصل آباد کی سڑکوں کو دیکھ لیں، یہاں کی گلیوں نالیوں سولنگ کی حالت دیکھ لیں، اسٹریٹ لائٹس کی حالت دیکھ لیں، یہاں کے سیوک ایشوز کو دیکھ لیں، تو اس کو دیکھ کے تو یوں لگتا ہے کہ گورنمنٹ نام کی کوئی چیز یہاں 3.5 سال رہی نہیں، تو نہ پنجاب میں نہ مرکز کی گورنمنٹ کے، ہم تو بہت بری طرح فیس کیا شہریوں نے۔ تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ لوگ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ووٹ دینا چاہتے ہیں اور اس کے نتائج بھی بھگتنے کو تیار ہیں، تو کم از کم میں تو ان کے بارے میں نیگیٹو الفاظ جو ہیں وہ استعمال نہیں کر سکتا۔ جو شخص خود اپنے لیے اپنی سزا تجویز کر رہا ہے کہ میں پارٹی پالیسی کے خلاف جاؤں گا، خواہ مجھے اپنی سیٹ کی قربانی دینا پڑے۔ اچھا، آپ کو کہیں نہ کہیں اب یہ لگتا نہیں ہے کہ وزیر اعظم تھوڑے سے گھبرا گیا، لوگوں کو یہ تسلی دیتے ہوئے کہ آپ نے نہیں گھبرانا، لیکن آپ خود گھبرائے ہوئے نظر آتے ہیں؟ جیسے کچھ دن پہلے درگئی میں انہوں نے تقریب سے خطاب میں یہ کہا تھا کہ جو ممبرس جا چکے ہیں وہ واپس آ جائیں، جو لیڈر ہوتا ہے باپ کی طرح ہوتا ہے، میں معاف کر دوں گا، لیکن کچھ ہی دیر بعد انہوں نے دھمکیاں بھی دینا شروع کر دیں کہ آپ کے بچے اسکول نہیں جا سکیں گے، آپ کے بچے شادیوں میں نہیں جا سکیں گے، آپ کو بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو کیا یہ رواج قائم کرنا کہ ایک وزیر اعظم سرعام آ کر لوگوں کو یوں دھمکیاں دینے لگ جائے ٹھیک ہے؟ میں سمجھتا ہوں دس از انسائٹمنٹ ٹو وائلنس، یہ وائلنس کی ترغیب دے رہے ہیں، اس کی طرف لوگوں کو راغب کر رہے ہیں اپنی پارٹی کے لوگوں کو، اور اس کا نتیجہ دیکھیں کہ جس طریقے سے انہوں نے کیا، تو سندھ ہاؤس پہ جس طرح حملہ کیا گیا اور جو ارکان اسمبلی ان کی پارٹی پالیسی کے مطابق نہیں چل رہے، ان کے گھروں کے سامنے جس طرح مظاہرے کیے جا رہے ہیں، تو یہ وائلنس پہ ابھار رہے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا نہیں کہ پرائم منسٹر یہ حرکتیں کریں، تو پرائم منسٹر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس طرح کی زبان کہ آپ کے بچوں کا کیا قصور ہے، آپ بچوں پر بھی وائلنس کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کی کیا آپ کے نظریات ہیں کہ آپ اپنی سیٹ کی خاطر تمام اخلاقیات کی تمام حدیں پامال کرتے جا رہے ہیں، حدود پار کرتے جا رہے ہیں؟ تو اس طرح نہیں ہوتا، آپ جمہوری طریقے سے آپ کریں، آپ فیس کریں، آپ کے تو اتحادی آپ کے ساتھ نہیں، آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ آپ کے ساتھ نہیں، آپ کس طرح ایک زبردستی آپ لوگوں کو ابھار رہے ہیں وائلنس پر، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بس میں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اور یہی بات جس طرح سے آپ پی ٹی آئی کے لوگ اپوزیشن میں جا رہے ہیں، تو پی ٹی آئی یہ بھی بڑی باتیں کرتے تھے کہ جو اپوزیشن کے کچھ لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی میں آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اب جب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے تو چونکہ ان کے پاس اب اس کا جواب بھی نہیں، تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہمیں جو اپوزیشن کے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا لگتا ہے کہ ایسے لوگ تھے ہی نہیں جو پی ٹی آئی میں آنا چاہتے تھے؟ دیکھیں 3.5 سال کے بعد تو ان کے اپنے لوگ جو ہیں، مجھے تو پتہ ہے، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، ایک لمبی لسٹ ہے جو نون لیگ کے ٹکٹ کے لیے، نون لیگ کے پاس ہے اتنی جگہ نہیں کہ وہ کس کو اکاموڈیٹ کرے، اس لیے وہ زیادہ لوگوں کو لے ہی نہیں رہی، وہ صرف اتنے لوگوں کو لے رہی ہے جتنی 10 بندوں کی انہیں ضرورت ہے تحریک عدم اعتماد کے لیے، تو 10 سے زیادہ وہ لینا نہیں چاہ رہی، بلکہ ان کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ
काफ लीग, मतलब अपोजिशन की बाज़ जमातें जो 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 इत्तेहादी जमातें जो साथ छोड़ रही हैं, अदम एतमाद के लिए तो उतनी सीटें काफ़ी हैं, लेकिन ये फिर भी वो लोग जो इनका साथ देना चाह रहे हैं अदम एतमाद में, उसमें ऐसे ऐसे हलके जहाँ या तो कोई रुकने कौमी असम्बली नाअहल है, या वहाँ इनका बंदा इंतकाल कर गए, या ऐसी जगह जहाँ इनके बंदे बहुत वीक हैं, सिर्फ उन जगहों पर ये बंदे ले रहे हैं पीटीआई के अरकान असम्बली, वरना इनके पास कोई 30-35 बंदों को अकोमोडेट करने के लिए इनके पास जगह ही नहीं है, तो वो बंदे बड़े थोड़े ले रहे हैं। तो ये सहूलत, अगर ओपोजिशन के लोग आ जाते तब भी ये लोग ऐसे हंगामा करते जिस तरह से आप कर रहे हैं? मैं समझा नहीं आपका सवाल। जिस तरह से अब ये कह रहे हैं कि लोटे हैं जी हमारे जो लोग हैं वो अपोजिशन में जा रहे हैं, जब अपोजिशन के लोग जब पीटीआई की हुकूमत आ रही थी तब उसमें शामिल होते, तब बड़े उससे कहा जाता था जी विकटें गिर रही हैं अपोजिशन की, और अब विकटें नहीं गिर रही, अब उनको लोटा कहा जा रहा है। ये बहुत खूबसूरत आपने बात की। यही सवाल मैं भी पूछ सकता हूँ कि भाई वो ये क्या है, जो आपके साथ मिल जाए वो लोटा नहीं है, तो जो आपको छोड़ के जाएगा वो लोटा है। तो ये बात जो है बहुत ही एक, फिर इसका क्या जवाब दिया जा सकता है? ये तो बड़ी बड़ी एक अजीब मजाका खेज बात हो चुकी है हम लोगों के लिए जब हम ये सुनते हैं, क्योंकि वही बात कि जब वो उन अपोजिशन के लोग आते हैं तब ठीक था, अब अगर इनके लोग जा रहे तो वो ठीक नहीं चले। एंड में एक लास्ट कमेंट्स आपसे ये लेना चाहूँगी कि तहरीक अदम एतमाद पेश तो हो गई है, इजलास भी इस पर शुरू हो जाएगा, आखिर रिज़ल्ट क्या देखते हैं आप? एक आखिरी कमेंट जानना चाहूँ। देखिए, बीइंग जर्नलिस्ट और एनालिस्ट, मैं हतमी राय तो नहीं दूंगा कि क्या हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ लम्हा बलम्हा सूरत हाल, सियासी सूरत हाल बदलती हो, जहाँ हर शख्स ने अपने पत्ते छुपा के रखे हों और अभी तक लोग खुल के सामने ना आ रहे हों, एक दूसरे की चाल को समझने की कोशिश कर रहे हों, वहाँ प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि किस खिलाड़ी की आखिरी चाल क्या होगी। तो ऐसे में, लेकिन एक वक्त में तो अपोजिशन का पल्ला बहुत उनका भारी था, और उनका पलड़ा जो है उसमें यूँ लगता था कि इतने वोट आने वाले हैं कि संभाले नहीं जाएंगे। लेकिन कभी कभी यूँ लगता है कि वो जो इमरान खान इतने ज़्यादा वो जलसे जुलूस करके और अपोजिशन को धमका के और बहुत सारे और हलकों के लिए बहुत सारे ख़तरनाक मैसेजेस दे के कि मैं बहुत ख़तरनाक हो जाऊंगा और पता नहीं क्या कुछ बता दूंगा, उसके बाद उसका असर मुख्तदर हलकों पे किस तरह पड़ता है, तो ये वो चीज़ है जो फ़ैसला करेगी कि तहरीक अदम एतमाद का क्या बनेगा, कि कौन कितना असर लेता है। बहुत शुक्रिया ज़फ़र डॉक्टर साहब, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू रही इनके साथ, और रिज़ल्ट भी बड़ा कह सकते हैं कि बड़ा ही तजस्सुस वाला होगा कि कुछ पता नहीं है कि जो कौन जीतने वाला है। तो अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।